सो आपने देखा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। बट ये पूरा ध्यान रखना कि ये जो पूरा डोमेन है, इट इज फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electrostatic electric field. That means the charge is static, the system of charge is static, and the field is conservative in nature. So I told you that we can follow different paths and still we will get the same work done. And if I take per unit charge, that means we are going to get same potential difference. So all those concepts are clear to you, right? So I wanted to show you that for same question, if I go by two different paths, so everything will remain same. So then it should be reflected in terms of numbers. नंबर्स के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए कि सारा आंसर जो है पोटेंशियल डिफरेंस का या वर्क डन का सेम आने वाला है। ठीक है, तो मैं एक सेम क्वेश्चन लेना चाहता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको शो करना चाहता हूं कि इन बोथ केसेस द आंसर विल कम आउट टू बी सेम। सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टाइम इट इज लिटिल सिंपल। पिछली बार मैंने थोड़ा सा टफ प्रोफाइल लिया था। द प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। E is equal to y x cap plus x y cap plus 2 z cap. This is the profile of electric field, little simpler. And you have charge is equal to 2 coulomb and the point B. So you want to move from point B to point A, right? And point B is 1 0 1 and point A is 0.8, 0.6 and 1. So these are the points on which you want to move. Okay, so मैं क्या चाहता हूं कि मैं दो अलग अलग रास्तों से जाऊं। ए से बी जाना है मुझे और मैं दो अलग अलग रास्तों से जाऊं, एक बार एक सर्कल हो। ठीक है, so we are moving on a circle like this, and this is point B and this is point A. We are moving like this, and another time it is a straight line. It is straight line. So another time we will move from B to A on a straight line, right? So these are the two paths I want to follow, and in both cases work done क्या होगा? सेम होगा। किसमें ज्यादा वर्क डन होगा दोनों में से? सेम होगा सर। सेम होगा सर। इट विल बी सेम। सो वंस आई वॉन्ट टू शो यू, ऐसे तो मैं कह सकता हूं कि सेम आएगा, बट एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि वी विल गेट सेम। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज ऑलरेडी गिवन। दिस सर्कल इज x square plus y square is equal to 1, and this is based on a plane z is equal to 1. So z is equal to 1 के ऊपर ये पड़ा हुआ है। It is x square plus y square is equal to 1 and z is equal to 1. You can see from the points also 1 and 1. So this is not changing, right? So on this I want to move and get the work done. So what will be, हमेशा ये फॉर्मूला लिखो, W is equal to minus Q from initial point to final point, yes, E dot dl, right? This is what is our work done. So what will be this? Let us take the dot product. It will be minus q. सब लोग साथ साथ करते रहो। Minus q integral from some point b to a, and take the dot product with dl. So what will be dl? You know dl will be equal to dx x cap plus dy y cap plus dz z cap, right? This is the small length dl. So when I take dot product with this, what I am going to get? Please tell me. It will be y dx plus x dy and plus 2 dz, right? So in dz, we are not moving at all, right? So this will be equal to 0, right? This will not contribute.
because you are going from 1 to 1, so you will get nothing. ओके, नाउ y और x है, तो आपको पता है कि आप इंटीग्रल ऐसे नहीं कर सकते, y dx है, so you have to write y as a function of x, so that you can write easily from here. Y will be equal to under root of 1 minus x square, right? And what will be x? X will be equal to under root of 1 minus y square. So now these integrals will be possible, right? So let us write them. Minus q integral b to a. So now this will become, y will become under root of 1 minus x square dx, and plus this will become under root of 1 minus y square dy. So now integrals are simple. Let me separate the integrals. दोनों को अलग अलग लिख देता हूं आराम से, तो वो यहां आ जाएगा. x कहां से कहां जा रहा है भाई? 1 से 0.8, और y कहां से कहां जा रहा है? 0 से 0.6. क्लियर है? Is this okay? Yes, sir. And I want you to remember class 12th integral, which is integral under root of a square minus x square dx, which is equal to x under root a square minus x square by 2 plus sine inverse x by 2. Okay, so this is the integral that I will be using. अब यहां से इन चीजों को हटा देता हूं, इसका अब कोई काम नहीं है, और हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. So what we are going to get is minus q. यहां पे बताओ, sin inverse x by a होगा ना? sin inverse x by a, sorry, sin inverse x by a, yeah, और a हमारा 1 है, ठीक है? So it will become minus q. बोलो, what will be the integral of this? It is x under root 1 minus x square over 2 and plus sine inverse x. 1 by 2. Sine inverse x, right? From 1 to 0.8, and plus same thing will happen this side, because integral तो बिल्कुल same ही होगा. So it will become एक bracket लगाना पड़ेगा. It will become y under root 1 minus y square by 2 plus sine inverse y, and the limits are 0 to 0.6 and bracket close. So upper limit and lower limit you can do. And what is the value of q? So 2 coulomb. 2 coulomb. So you will get the answer as minus 0.96 joule. So this will be the answer. या बाद में चेक कर लेना, upper limit minus lower limit करना है, ठीक है? So ये सबको क्लियर हो गया? जिस रास्ते से गए थे उस इक्वेशन को मैंने यूज कर लिया, ताकि अदरवाइज तो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब y पे यहां पे इंटीग्रल करोगे dx पे, तो y लगातार बदल रहा है. कैसे बदल रहा है? इज गिवन बाय दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल. नाउ इन सेकेंड केस आई विल गो फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. देखो ये क्लियर है भाई? सॉरी, वाइज यहाँ सर sin इनवर्स x upon 2 है. साइन इनवर्स Yes, x sir. Divided by 2, sir. 1 by 2 छूट गया था सर. फॉर्मूले में, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया. एक बार इसको, ये है प्लस, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ. x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 है साइन इनवर्स x बाई a. ये है फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है ना? और इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा? कहां पे 2 आएगा? यहां 2 आ जाएगा, और यहां भी 2 आ जाएगा. ओके, सो 2 विल बी देयर. सो दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम. देखो इस बार आप सर्कल से मूव करके आए और आपको ये आंसर मिला. अब ये हटा दूं बिकॉज मुझे अब स्ट्रेट लाइन से मूव करके आना है. सो आई विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड आई विल गेट द सेम आंसर. ओके,
So can I erase this? Yes, sir. So now, same question. What was my W? It was minus Q integral A to B, B to A, sorry, B to A. And what I got here? Y dx plus X dy, right? This is what I got. And this time I am moving on a straight line. So B से A मैं आ रहा हूं, but मैं कैसे आ रहा हूं? Straight line से आ रहा हूं. So what is the value of B? B की क्या value है? It is 0.8, 0.6, and 1. No. What are the coordinates of B? It is 1, 0, and 1. 101. And what are the coordinates of A? It is 0.8, 0.6, and 1. So what is the equation of this line, this 3D line? I want to know this, the equation of this. So आपको पता है this can be written as some x, y, z. The point can be written as x, y, z, and by comparing the slopes, we can write it as y minus yb over ya minus yb is equal to x minus xb over xa minus xb, right? So this is just by comparing the slopes. So आप जरा values put करो जल्दी से. So it will become y minus, what is yb? It is 1 over ya minus yb. So what is ya? It is 0 minus 0.6. Yes, Yes, sir. 0.6. And this is equal to x minus xb. What is xb? 1. सर ऊपर फॉर्मूले Sir, में कोई वो मिस्टेक है सर, वहां पे y माइनस वाई ए की जगह है तो सर y b होगा सर वहां पे. कहाँ पे? यहाँ. यस सर. yes, सर जैसे राइट में x माइनस एक्स बी है तो लेफ्ट में भी y माइनस वाई बी होगा ना. Wait. ये मैंने लिखा b से a. So y, ये सर I think this is okay. यहाँ पे मैंने एक मिनट रुक जाओ. ये जो yb है ये 0 है, right? yb is 0. So this will become x minus 1 over xa minus xb. कितना हो जाएगा? 0.8 minus 1, right? xa minus Yes, sir. xb. So what you will get y as a function of x. जल्दी से करो ये cross multiplication. Do the cross multiplication. You will get y is equal to minus 3x plus 3. So बस मेरा यही पर्पस था कि मैं y को एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लूं ताकि यहां पे आराम से पुट कर सकूं इंटीग्रल करते समय. ओके. एंड z you don't need to touch because उसकी वैल्यू तो 1 ही है. So what is the value of the integral that I am going to get is minus 2 integral. What is the value of y? It is minus 3x plus 3 dx and plus integral. What is the value of x as a function of y? वो भी निकालो जल्दी से. क्या हो जाएगा? sir, y 3 minus y by 3. 3 minus y by 3. Okay, इस इक्वेशन से निकाल लो. So that will be the value of x. So इसको भी यहां लिखना पड़ेगा मुझे. 3 minus y by 3 and dx. So पर्पस समझ में आ रहा है ना, ताकि मैं y को x के फॉर्म में लिख सकूं और ताकि इंटीग्रल कर सकूं. अब x कहां से कहां जा रहा है? It is going from 0.8 to 1. b to a. 1 to 0.8. 1 to 0.8. And please off your mic. And ये कहां से कहां जा रहा है? y 0 Sir, 0 to से 0.6. 0.6.
सो जब आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर एज -0.96 joules. ओके Yes, sir. और आप कई लोग आपने उल्टा याद किया होगा, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिवर्स भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है ना। वाई बी माइनस वाई ए यहां लिख सकते हो, यहाँ एक्स बी माइनस एक्स ए लिख सकते हो, नथिंग विल चेंज. ओके सो दिस वॉज जस्ट टू टेल यू कि आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे गए, एक बार स्ट्रेट लाइन से गए, एक बार सर्कल से गए, और दोनों बार आंसर वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या मिला बताइए? सेम. और ये कब मिला? जब फील्ड आपकी कंजर्वेटिव है. ये कैलकुलेशंस इतने समय पहले की गई, बहुत पहले, और शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जन्म होता है वो यहीं से होता है. कैसे? जरा देखते हैं. बताओ, ये मिटा सकता हूं मैं? Yes, इसमें sir. किस अंशिका क्लियर हो गया ना तुम्हारा डाउट? यस सर. आप ऐसे देख लेना ना कि कोई दो पॉइंट है, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, और कोई पॉइंट है x y z, तो 3D इक्वेशन लिखी जा सकती है ना लाइन की, क्योंकि यहां से यहां Yes, का sir, स्लोप लेकिन और यहाँ. ठीक है. यस सर, आपने भी सर लिखा तो सर वाई बी की वैल्यू है, बस वहां पे फॉर्मूला में वाई ए लिख रखा है आपने, बस वो बोला था मैंने. कहाँ पे मैंने y ये लिख रखा है? सर आपने इस पर वाई माइनस वाई ए लिखा है ना, और सर फिर सेकंड लाइन में आपने वाई माइनस वाई भी लिखा है सर. जो जीरो है वो वाई बी की वैल्यू है, वो और कह रही थी. कहाँ यस y सर, ये ये लिख वाई रखा बी है? की वैल्यू ऊपर वाई ए लिख रखा है सर. नहीं भाई, y भी है. ये ये, ये ए दिख रहा है सर अरे ऊपर नहीं से. नहीं नहीं भाई, ये मेरे कैमरे की प्रॉब्लम है. ये y मैंने लिख रखा है. ठीक है, अब ठीक है. हाँ सर, ओके. यस सर. ओके, डोंट वरी. तो अब जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिला. इसका रिजल्ट ये मिला कि किसी भी रास्ते से अगर गए, यहां से यहां और यहां से यहां, तो वर्क डन सेम मिला. ये तो क्लियर हो गया ना आपको? दिस इज क्लियर. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रास्ते से इधर गए और इस रास्ते से इधर वापस आ गए तो वर्क डन 0 हो जाएगा. हाँ, फॉर सच कंजर्वेटिव सिस्टम्स, कंजर्वेटिव फील्ड, B to A and A to B. यस. तो इसका मतलब क्लोज्ड अगर इंटीग्रल कर दूं और -q E.dl कर दूं, तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए बताओ भाई? 0. तो Zero. इसका कोई मतलब नहीं रह गया. इसको हटा देता हूं. ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसके ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है. बिकॉज E.dl आपको याद होगा कि दिस इज पोटेंशियल. वर्क और पोटेंशियल सेम हो गए, राइट हैंड साइड 0 है तो उधर चला गया. सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इसका मतलब हुआ कि अगर मैं क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सम करता हुआ आऊं तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 होगा. एंड दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो आप दुनिया भर के सर्किट्स में यूज करते हो. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये कोई बैटरी है, ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, ये फिर से कोई बैटरी है, ये फिर से कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और फिर से आप इस तरीके से क्लोज लूप में आते हो, ये EMF E1 है, ये E2 है, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस मैं नहीं लूंगा अभी, ठीक है, और ये R2 है. सो इस तरीके से है. तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में करंट के फ्लो को मान लूं तो मैं क्लोज लूप में, ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है ना. E.dl इज व्हाट? इट इज वोल्टेज ड्रॉप. तो यहां से लिखना शुरू करो. तो इट विल बी -E1 प्लस IR2 माइनस E2 प्लस IR1 is equal to 0. So this is actually summation V is equal to 0. दूसरा कन्वेंशन भी ले सकते हो, इसके डायरेक्शन को अपोजिट भी ले सकते हो करंट की. इज दैट ओके? यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. this is the same law which you have derived from simple calculations, that in a closed path
so the potential is equal to 0. So this will be used and whole of the electronics is based on, चाहे डायोड आ जाए, ट्रांजिस्टर आ जाए, चाहे ऑप एम्प आ जाए, कुछ भी आप पढ़ लो, सब में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए बोलते हैं बिकॉज Q मल्टीप्लाइड है यहां पे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी ना, यस और नो? सो फॉर Yes, sir. for unit charge, this is potential and work is same thing. So that's why we call that Kirchhoff's voltage law is about conservation of energy. So this is derived from the pure इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वहां से निकल के आया है। और सोचो कि इससे पूरा नया ब्रांच बन गया which is known as electronics. So by this you get a branch that is electronics, right? ठीक है, अब जरा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो कैन आई रेज दिस? और मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और वेक्टर पढ़ाने के बाद ये मैं आपके को पढ़ाऊंगा कि जैसे कोई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं क्लोज लूप में E डॉट dl, तो उसको मैं इंटीग्रल क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस E भी लिख सकता हूं, यस और नो? यहां पे E डॉट dl है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, डेल क्रॉस डेल क्रॉस ई डी, डेल क्रॉस E, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट dA लिख सकता हूं, और डीएस सर। ठीक है ना? ये भी आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां से जब आप कंपेयर करते हो तो आपको निकल के आ जाएगा कि बिकॉज दिस इज 0, सो इसलिए डेल क्रॉस E की वैल्यू किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम लोग चेक करेंगे कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा मैं लेटर ऑन जब इंट्रोड्यूस कर दूंगा तब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाय फोर्स भी तो लिख सकते हैं सर इसे। सॉरी, सर कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल 0 होता है, तो उससे भी हम इसे लिख सकते हैं सर। कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड देखो, अगर रावत साहब, अगर जरा आप शुरू से देखो तो जब फोर्स की डेफिनेशन आई तो पर यूनिट चार्ज को ही तो तुमने फील्ड कह दिया, यस और नो? और फिर जब वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया तो पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल कह दिया। तो इन दोनों में ज्यादा दूरी नहीं है, पर यूनिट चार्ज कर लो तो दैट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? बट जब हमें बात करनी होती तो हम फोर्स के टर्म में नहीं, फील्ड के टर्म में बात करते हैं, बिकॉज सिस्टम की प्रॉपर्टी फोर्स से नहीं आती, फील्ड से आती है। फोर्स इज बिटवीन टू चार्जेस, फील्ड you don't need another charge. Field is the property of even a single charge or many charges. Okay? ठीक है ना? ओके सर। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl, just wait. Now I want to introduce concept of gradient. ठीक है? और मैं चाहता हूं कि हम लोग ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, नॉट कि ये ग्रेडियंट होता है ऐसे मैथमेटिक्स करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लें, फिर उसके बाद मैं इस पे आपको प्रॉब्लम भी कराऊंगा, ठीक है ना? सो from where the concept of gradient is coming, that I want to explain you. So what is potential? Essentially potential is, कोई बता सकता है, इंटीग्रल E डॉट dl, राइट? और अगर मैं from going from some initial point to some final point, so अगर मैं just dl डिस्टेंस चलूं तो स्मॉल पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा, माइनस E डॉट, बताइए भाई, डेल्टा एल, यस और नो? यस सर। अगर मैं Yes, sir. स्मॉल पोटेंशियल लिखूं फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये जो डी फाई, या इसको भी मैं डेल्टा फाई लिख सकता हूं, ठीक है? बाद में डी लिख लूंगा व्हेन आई विल मेक लिमिट वेरी वेरी स्मॉल। सो इसको डेल्टा फाई। अब देखो जरा, इतने छोटी सी मैथमेटिक्स से कितना बड़ा कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट का निकल के आता है, और जो कि फिर हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई हो जाता है। इसको ओपन करो जरा, आप सब क्लास 12 से करते आ रहे हो। दिस इज इक्वल टू दिस, यस और नो? और अगर मैं डेल फाई बाय डेल
del phi by del L लिखना चाहूं, so this will become minus E cos of theta. Yes or no? Yes, sir. अब अगर मैं यहां से del phi by del L की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहूं, del phi by del L की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहूं, so that will come out to be E. Yes or no? Because cos थीटा की वैल्यू मैं कितनी ले लूंगा, -1 ले लूंगा. So you know at different theta I will get different values because theta cos theta की वैल्यू -1 से 1 होगी. But to make this side maximum, cos theta should be -1 because this minus and minus will become plus. Yes or no? Yes, sir. सो ये जो थोड़ी सी एक्सरसाइज है, इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर मैं पोटेंशियल के मैक्सिमम वेरी होने के जस्ट अपोजिट चलूं, बिकॉज थीटा यहां कितना आ गया, पाई आ गया, cos पाई इज -1. सो अगर जस्ट अपोजिट चलूं, सो आई विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक बार जरा ये थोड़ा लिख भी लो लैंग्वेज में. Magnitude of electric field intensity is given by magnitude of electric field intensity is given by maximum rate of change of potential with distance. Maximum rate of change of potential with distance. And the maximum value is obtained when we move just opposite to the direction of increment of potential. तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से चेंज हो रहा है, उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो ये बात समझ में आ गई सबकी? Yes, sir. ओके. नाउ अब यहां पे मुझे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस डेल फाई बाय डेल एल. कोई भी डायरेक्शन ले लेता हूं मैं. E इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल फाई बाय डेल एल, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू मैंने -1 ले ली. ठीक है. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, उसको मैं क्या लिख लूं बताओ, उसको डीएल कैप लिख लेता हूं. ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से वेरी कर रहा है, उस डायरेक्शन में मुझे डिफरेंशिएट करना होगा. मैंने इस डेल्टा फाई और डेल्टा एल को वेरी वेरी स्मॉल ले लिया. अब जो ऑपरेशन ये कर रहा है, जो ऑपरेशन, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो, जो ऑपरेशन ये कर रहा है उसका नाम ग्रेडियंट है. तो द ऑपरेशन विच इज वर्किंग, सो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ फाई. द ऑपरेशन विच इज डूइंग दिस इज नोन एज ग्रेडियंट. और ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे निकालना है, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके हमें यूनिट वेक्टर को निकालना है. जैसे मैंने आई कैप का एग्जांपल आपको दिया था, तो यहां पे पता चल गया कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई. द एजेंसी विच इज कैलकुलेटिंग दिस, द ऑपरेशन ऑन V विच इज कैलकुलेटिंग दिस इज नोन एज ग्रेडियंट. इज दैट ओके? तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो ग्रेडियंट एक्चुअली इस ऑपरेशन को कहते हैं जो फाई का मैक्सिमम चेंज निकाल सके. तो हमें ये नहीं पता कि ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आने वाली है, वी डोंट नो दैट. हमें बस ये पता है कि फाई का जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन में उस एजेंसी को मैं ग्रेडियंट लिख लूंगा. अब जरा डिराइव कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस वैल्यू. सो दिस विल बी वेरी नाइस टू डिराइव.
एक सिंपल मैथमेटिक्स करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लो पोटेंशियल में वेरिएशन लिखना चाहूं dv वेयर v इज फंक्शन ऑफ x y z, तो कैसे लिखूं? आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव, डेल फाई ही लिख लेता हूं, डेल फाई बाई डेल x, यस, dx प्लस डेल फाई बाई डेल y dy प्लस del phi by del z dz. So this is how the small increment delta phi should be written. और dv वैसे मैंने क्या निकाल रखा है, माइनस e डॉट dl, राइट? सो विच इज माइनस, ये बताओ जरा, e का x कंपोनेंट dx प्लस e का y कंपोनेंट dy प्लस e का z कंपोनेंट dz. इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी फाई लिख लो यार, बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है, मतलब v से भी लिख सकते हैं, फाई से भी लिख सकते हैं, ओके, आई एम यूजिंग फाई हियर. सो जरा कंपेयर करो, तो आपको सबके सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमेशा बहुत बार इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सो Ex जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आ जाएगा, कंपेयर करो, दैट विल कम आउट टू बी माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स. y कंपोनेंट कंपेयर करो, it will come out to be minus del phi by del y. और z component compare करो, it will come out to be minus del phi by del z, right? So ये तीनों components हमारे निकल के आ गए. अब इसको मैं कह रहा हूं कि E is equal to minus grad of phi है. ये क्लियर है भाई सबको? This is clear? Yes, sir. सो मैं कह रहा हूं कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ फाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया E इज इक्वल टू माइनस सम ग्रेड ऑफ फाई है. सो इसका मतलब E ऑफ माइनस आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल बाय डेल वाई प्लस z cap del by del z and into phi. Yes or no? Because जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x y z कंपोनेंट आ गया, so what is electric field? Electric field is x component into x cap plus y component into y cap plus z component into z cap. यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसमें ये लाके पुट कर दो सारी चीजों को, तो ये कॉमन आ जाएगा. तो यहां पे वो एजेंसी क्या है जो ये काम कर रही है, बताओ. यहां पे तुमने कहा था ये माइनस ग्रेड ऑफ फाई है, दैट एजेंसी. सो यू हैव नोन हियर दैट ग्रेड ऑफ फाई विच इज डिफाइंड एज दिस समथिंग इनटू फाई. सो व्हेन यू कंपेयर, तो यहां से निकल के आता है कि ये जो ऑपरेटर है दैट इज आई डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड. ठीक है, हम कई बार पहले ही ये लिख देते हैं कि डेल ये होता है, नहीं, जो निकल के आ रहा है उस एजेंसी का नाम ग्रेडियंट था, तो मैंने इसको एक ऑपरेटर से डिनोट कर दिया, एंड विच इज दिस. अंडरस्टूड? Yes, sir. सो दिस इज वेरी नाइस डेरिवेशन. अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्योरली मैथमेटिकल डेरिवेशन है. तुमने अपने आप मैथमेटिक्स करके इसको मैक्सिमाइज किया, उसकी डायरेक्शन को लिखा, और अपने आप जो एजेंसी ये काम कर रही थी उसकी जगह अपने आप ये ऑपरेटर आ गया. अब तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला आ चुका है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, और वो अब आपको याद रखना है. बट ये बैकग्राउंड में डेरिवेशन पता होने से आप देखना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सब में मैं ये सेम डेरिवेशन कर दूंगा. ठीक है, सब में मैं ये देख लूंगा कि मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन क्या है. तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ फाई, और बाद में ये फॉर्मूला मॉडिफाई करूंगा. अभी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो यही फॉर्मूला है. और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में लिख लिया. इज दैट ओके? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं.
लेकिन उसमें हमें अपोजिट चीजों को निकालना होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन which is E is equal to A y x cap plus x y cap. Suppose this is given. अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, फील्ड इज गिवन एंड आई वांट टू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकलेगा? आप लोगों ने अगर कभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किया होगा तो वहां पे भी मैं पार्शियल डेरिवेटिव का ये चीज मैं यूज करता हूं, आपने भी यूज किया होगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हैं वो आपको याद होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख लेता हूं, ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस ई जेड जेड कैप, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं तो ये सारे कंपोनेंट पोटेंशियल से रिलेटेड है। जैसे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या आया था भाई, याद है? माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। यस और नो? ठीक है, तो जो डेल फाई है दैट इज एक्चुअली माइनस ई एक्स एंड डेल एक्स। यस, एंड व्हाट इज E of x here? What is x component here? It is ay. So it is minus ay and del x. अब वैसे तो इंटीग्रल पॉसिबल नहीं था, बट पार्शियल के केस में ये पॉसिबल है। ठीक है ना, अभी तक यही तो दिक्कत आ रही थी कि y पड़ा हुआ था, बट यहां पे चलेगा। सो इंटीग्रल अगर मैं करता हूं तो मुझे फाई की वैल्यू मिलेगी विच विल बी माइनस ए एक्स वाई प्लस, यहां y कांस्टेंट है इसलिए वो एज ए कांस्टेंट आ सकता है और कोई नंबर भी आ सकता है। इस बात को जरा ध्यान से देखो, जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो y इज लाइक अ कांस्टेंट। यस और नो? Yes, sir. एंड जब मैं y वाला देखूंगा, सब लोग अब जरा करो फटाफट, ई वाई विल बी minus del phi by del y, correct? So phi will be minus, what will be ey? It is x and delta y. कर रहे हैं भाई सभी लोग? और this will become minus xy plus some function of x plus some c2. So ex field, एक मिनट, यहां भी a है, okay? So it will become minus ax and it will become axy. ठीक है? The a was actually outside. अब दोनों पोटेंशियल को देखो, दोनों सेम ही पोटेंशियल हैं, तो जरा इनको देख के हम फाइनल पोटेंशियल लिख लेते हैं। पहला टर्म है माइनस ए एक्स वाई, माइनस ए एक्स वाई होगा माइनस ए एक्स वाई, एंड फिर ढूंढो कि क्या कोई फंक्शन ऑफ y है। आंसर इज नो, नहीं है। और क्या कोई कांस्टेंट है? आंसर है यस। तो ये हो जाएगा दिस प्लस सी। सो दिस इज द पोटेंशियल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फील्ड है और जो पोटेंशियल है उनके बीच में संबंध है, और वो संबंध का यूज करके इट इज नॉट रैंडम, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। बिकॉज हमारा मोटिव यही था कि क्या हम वेक्टर को की इंफॉर्मेशन को स्केलर के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, तो आंसर था यस, सेव कर सकते हैं। सो इज दिस ओके? यस सर। सो ये Yes, जो sir. तरीका है ये बहुत ही आराम से आपको
इस तरीके से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। कंपैरिजन वाली चीज में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस पे अगर आप पीछे देखोगे तो जस्ट में बस फंक्शन बदला था और क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं और आप मेरे साथ साथ करेंगे सभी लोग फटाफट। इसको इरेज कर दूं? Sure, sir. तो अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है, I mean this is property actually, this is coming from the property of partial derivatives, nothing else। मैं एक और प्रॉब्लम नोट कर लूं और फिर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। जस्ट फील्ड नोट कर लेता हूं। E is equal to 2axy x cap plus a x square minus y square and y cap। So this is the field। अब फिर से जरा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल आई वांट टू कैलकुलेट। So what is x component of field? It is 2axy। and what is y component of field? It is ax square minus y square। so ये ध्यान रखना, ये सब रैंडम नहीं लिखे हुए हैं। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए दे हैव सम रिलेशन। जैसे आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz में u और y रैंडम नहीं होता है, उसके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको कॉशी इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, कॉशी रिलेशंस बोलते हैं। तो जरा ये देखो, what will be ex is equal to, it will be equal to 2x minus del phi by del x। so what will be the value of phi? it will be a x square y plus fy plus c1। what is the value here? a x square minus y square is equal to minus del phi by del y, right? and what is the value of phi? bolo, integrate it। it will be a x square y minus y minus cube y Cube cube by by 3 3 plus fx and plus C2. c2। अब इन दोनों को ध्यान से देख के हमें फाइनल पोटेंशियल लिखना है। we have to write the final potential by looking it very very carefully। पहला with टर्म है a x square y। a sir, you square miss negative sign. where? One Here, negative sign. here ना? Negative sign भी आएगा। yes yes yes। Yes, sir. In second position also. so there, यहाँ भी मिस किया क्या? Yes, sir. दोनों I think जगह। I missed here also। this negative sign is very very important, don't miss it। okay, यहाँ पे भी ये नेगेटिव साइन होगा, तो लेट मी पुट इट हियर। या नाउ इट इज ओके। Yes, sir. सो प्लीज सी, फर्स्ट टर्म इज माइनस। एक्चुअली बोर्ड के जो पास खड़े होने की वजह से मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है कि मुझे दिखता नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। साइड से देखता हूँ तो उससे कई बार मिस्टेक होता है। ठीक है, बट यू ऑल आर देयर, आपको करेक्ट करते जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहला टर्म है माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई, दोनों में है, कोई टेंशन नहीं है। अब ढूंढो क्या कोई टर्म एफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई है? आंसर इज यस, है। Yes, और sir. उसकी वैल्यू है ए वाई क्यूब बाई 3। और ढूंढो कोई कांस्टेंट है, तो आंसर है कि हाँ भाई कांस्टेंट भी है, उसकी वैल्यू है सी। सो दिस इज द पोटेंशियल। ये दोनों पोटेंशियल सेम है, इनको देख के आपको पोटेंशियल को लिख देना है। इफ देयर इज एनी डाउट you can ask। so this is the potential। obviously there is integral involved and you don't know the boundary condition, so obviously the value of constant is unknown here, but the nature of potential has already come। so इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो जिसमें फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल पूछा हो with some constant, so you can always calculate। yes, Yes, sir. is this okay? सबको समझ आ गया?
Can I erase this? Yes, sir. Okay. अब एक क्वेश्चन मैं इस पे भी करना चाहता हूं कि मान लो कोई चार्ज है यहां, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर किसी चार्ज को बी से ए तक लेके आया जाए, यहां पे पोटेंशियल वी ए है, यहां पे पोटेंशियल वी बी है। ये मैं कब कह सकता हूं? जब रेफरेंस पोटेंशियल जीरो है। इनफाइनाइट जीरो। जीरो है, ठीक है ना। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा बहुत अच्छी सी जिसमें इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। सो W फ्रॉम B to A is equal to VA minus VB into Q। ये बात क्लियर है? This is actually from the basic formula. Is this okay? So Yes. अब क्वेश्चन sir. ये है कि अगर मान लो एक सिस्टम है जिसमें Q माइनस Q एंड Q माइनस Q चार्ज इस तरीके से अरेंज है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड A, तो इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी होगी और इस सिस्टम को तोड़ने में भी कितनी एनर्जी लगेगी, दोनों ऑब्वियसली सेम होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को बनाते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस Q चार्ज को, इसको 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 4। इस Q चार्ज को लेके यहां आते हैं और इस पॉइंट पे रख देते हैं, ओके। एंड यू ऑलरेडी नो दैट द पोटेंशियल, the work done is equal to Q into potential, and potential at infinity is zero, so VA minus VB, VB is zero, so that's why it's become V. So this becomes 1 by 4 pi epsilon naught for point charge Q by R. This is potential and this is the charge. So here charge is Q and यहां पे क्या कोई पोटेंशियल है? No. इस चार्ज को तो मैं लेके आया हूं, यहां कोई पोटेंशियल नहीं है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 इज इक्वल टू 0 है। अब दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं विच इज माइनस Q। अब ये चार्ज आया है, इसका पोटेंशियल ऑलरेडी है, रेफरेंस पोटेंशियल 0 है, तो ये ऑलरेडी है, तो W2 क्या हो जाएगा? W2 विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q into minus Q and by A. Yes, this is A. अब मैं तीसरा लेकर आता हूं, दिस इज सेकेंड। तो जब मैं थर्ड चार्ज लेकर आऊंगा तो वो इसके पोटेंशियल में भी रखा हुआ है और इसके पोटेंशियल में भी रखा हुआ है, तो यू नो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क्स हियर, सिंपल स्केलर क्वांटिटीज एंड इवन इट वर्क्स फॉर वेक्टर्स, थैंक गॉड। तो W3 जब आएगा तो इसकी वजह से और इसकी दोनों की वजह से होगा, तो 1/4 pi epsilon naught and this is charge Q, so it will be Q into minus Q by A and plus 1/4 pi epsilon naught Q into Q by A root 2, because this distance is A root 2. Okay, so this is W3. And when fourth charge is brought, which is minus Q, then what will happen? Now this, when it comes, यहां पे कौन कौन से पोटेंशियल काम कर रहे हैं? इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, तो तीनों मुझे लिखने पड़ेंगे। So W4 will be equal to 1/4 pi epsilon naught. So this is there, minus Q into Q by A
प्लस ये हो गया ये वाला 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय a√2 प्लस this one 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू बाय ए। और आप ये देखोगे ये जो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, इसी से मैं किसी भी सिस्टम की एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में अभी मैं लिख रहा हूं, फिर मैं फील्ड के फॉर्म में लिख लूंगा, और दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर इन द सिस्टम। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल हमारा चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो, चाहे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, चाहे एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स हो, सब में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही समझना चाहते हैं। वही हमारे काम की चीज है और वही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना? सो वी वांट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। सो एनर्जी देखो, जब चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अरेंज हैं तो इनकी टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ WI। सबको जोड़ दो तो यू विल गेट द टोटल एनर्जी। उतना काम करना पड़ेगा अगर उसको अरेंज करना चाहते हो, और अगर उतनी एनर्जी दे दी तो टूट जाएगा सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वर्क। सो आई होप दैट नाउ, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. और जानते हो मजेदार बात, इन सब में रेफरेंस पोटेंशियल इन्फिनिटी है। अगर जरा सा क्वेश्चन चेंज किया जाए और रेफरेंस पोटेंशियल को 1 वोल्ट कर दिया जाए कि भाई रेफरेंस पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, अब हालांकि ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में बताओ तो हर केस में दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट चार्ज है तो रेफरेंस ऑलरेडी इन्फिनिटी पे ही है। मैंने वो भी क्वेश्चन आपको कराया था। सो नाउ अब पूरी चीज को समझो, और वही सारी चीज अब आपको पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, बिकॉज फॉर्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल, कि आपके पास एक चार्ज था, देन यू हैड 2 चार्जेस जिससे कूलम्स लॉ आ गया, देन यू हैड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज property of 1 charge or system of charges, then you came to concept of work, and then you came to concept of potential. So ये अगर पूरा फॉर्मुलेशन क्लियर है तो बिल्कुल सारी चीजें, तो अब हमें आगे बस यही याद रखना है कि अगर कोई चार्ज है स्मॉल चार्ज dq, तो उसकी वजह से ये फील्ड होती है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ये याद रखना है कि इट विल बी माइनस सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट E डॉट dr और dl, whatever you want to write. This is the potential. और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इट इज माइनस डेल वी, लेकिन मैंने उसका सबका ओरिजिन आपको इसीलिए बताया है, आपको ज्यादा पसंद हो जो फाई या फिर जो भी पसंद हो आप उसमें लिख सकते हो, बट यू शुड नो बोथ। हाँ, सो ये सारा का सारा फॉर्मुलेशन अगर क्लियर है तो बस इसी को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमें रेप्लिकेट कर देना है, नथिंग एल्स। वी हैव टू रेप्लिकेट देम इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सो अगर किसी को यहां तक कोई चीज पूछनी हो फॉर्मुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो यू कैन आस्क। अब अगर मुझे स्मॉल चार्ज लिखना आ गया और उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आ गई, तो बाकी क्या होना है, अगर कहीं सिलेंडर है तो वहां भी मैं dq लिखूंगा, कहीं स्फेयर है वहां भी मैं dq लिखूंगा, मैं हर जगह dq ही लिखने वाला हूं, कुछ और नहीं। I will be writing always the value of dq in different coordinate systems, right? And this r is distance between the charge and the point where you want to calculate. ये चार्ज dq है और इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस r है। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डैश वैश लगाने के चक्कर में मत पड़ना कि ओरिजिन क्या है, कहां पे सोर्स है, कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये मतलब है कि सोर्स और वो पॉइंट उसके बीच की डिस्टेंस आ रही है, जिसके भी टर्म में लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं लिख लूंगा। ठीक है, तो आस्क इफ देयर इज एनी डाउट अप टू दिस। यस।
Anybody wants to ask anything? So now I will provide you the notes also and the worksheet also जिसको आपको solve करना होगा, and फिर हम आपका एक टेस्ट भी लेना चाहेंगे यहाँ तक का। तो अगर ये चीज अच्छे से आप कर लोगे तो आगे बस आप ध्यान दोगे, बार बार मैं इन्हीं चीजों को रेप्लिकेट करता रहूंगा। ठीक है? जी सर। Okay, then thank you so much. Thank you. Thank थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you.